ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के गंगा पुत्र तबके की अगर किसी भी शक्ल में दिल आज़ारी हुई हो तो बिला किसी ताख़ीर मुआफ़ी मांगने से हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। ये बात रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने एक वीडियो बयान में कही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद तमाम तबक़ात की मुतवाज़ी तरक्की है और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम तबक़ों की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तबक़े के साथ नाइंसाफ़ी ना होने पाए। ప్రధానంగా ఆ రోజు జరిగింది ముదిరాజు సంఘానికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మగౌరవ మరి శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అయినప్పుడు ముదిరాజులను ఉత్తేజపరచడానికి మాట్లాడినటువంటి మాటలే తప్ప ఎక్కడ కూడా గంగపుత్రులను కించపరచడం కానీ లేకపోతే సంబోధించడం కానీ ఎక్కడ జరగలే. బట్ మరి ఎక్కడ చూసినా కానీ ఏదో అట్టయినట్టు గంగపుత్రులను కించపరిచినట్టు మాట్లాడింది అని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవుతుంటే నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ నేను తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమాపణ చెప్పడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు. ఈరోజు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గంగపుత్రులని పట్టించుకున్నటువంటి నాదుడే లేడు. గౌరవ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వారు తన మానస పుత్రికలైనటువంటి గంగపుత్రులు ముదిరాజులు కానివ్వండి లేకపోతే కులకుర్మలకు కానివ్వండి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్కీమ్, అంటే వాళ్ళు ఆర్థికంగా సామాజికంగా పైకి రావాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా కాళేశ్వరం లాంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు కట్టి ఈరోజు 365 రోజులు నీళ్లు కలకలలాడుతుంటే అందులో చేపలు ఉండాలి. ఈ చేపలు ఉండేటువంటి అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి చెరువులలో చేపలు కలకలలాడమే కాకుండా దీని హక్కులు కూడా గంగపుత్రులకు ముదిరాజులకే ఉండాలని స్పష్టంగా सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं योम पैदाइश पर शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाले जुलूस के ज़िमन में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं। कल 18 जनवरी पीर के रोज़ गुरु गोबिंद सिंह जी की योम पैदाइश है। वाज़ेह हो कि हर साल गुरु गोबिंद सिंह जी की योम पैदाइश के मौके पर सिख बिरादरी की जानिब से बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ जुलूस निकाला जाता है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने सुल्तान बाज़ार, चार मीनार और गोशा महल में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करते हुए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की शहरियों से ख्वाहिश की है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस जुलूस की वजह से पीर के रोज़ तीसरे पहर 3 बजे से रात 11:30 बजे के दरमियान ट्रैफिक मसाइल पेश आ सकते हैं। ज़िले विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स पर कोऑकस एसोसिएशन की जानिब से 2021 प्लोगैथन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। महकमे फॉरेस्ट और विकाराबाद म्यूनिसिपल के ताउन से मुनक़िदा इस प्रोग्राम के तहत अनंतगिरी हिल्स पर सफाई मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में विकाराबाद रुकन असम्बली एम आनंद, चेवल्ला रुकन असम्बली के यादయ్య, एडिशनल कलेक्टर मोतीलाल, DFO वेणु माधव, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन रमेश मंजुला और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर विकाराबाद रुकन असम्बली एम आनंद और चेवल्ला रुकन असम्बली के यादయ్య ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनंतगिरी को तेलंगाना का ऊटी कहा जाता है। यहाँ के जंगल में मुख्तलिफ अक़साम के चरिंद और परिंद ज़िंदगी बसर करते हैं। इस जंगल को साफ़ सुथरा रखना और आलूदगी से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने अनंतगिरी को आने वाले सयाहों में सफाई के मुतालिक शऊर बेदार करने, यहाँ पर साइन बोर्ड्स लगाने का मुतालिका हुक्काम को मशवरा भी दिया। లాగతాన్ అనేటటువంటిది కొత్తగా మన రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఇందాక గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు కొత్త కార్యక్రమం. మనం మారథాన్ వింటుంటాం ఎప్పుడైనా కానీ. మారథాన్ అంటే ఏంది? రన్నింగ్ చేయడం, జాగింగ్ చేయడం. ఈ ప్లాగతాన్ అంటే ఏంది అంటే జాగింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్న చెత్తను తీసేయడం. జాగింగ్ ప్లస్ పికింగ్ ఆఫ్ లిటర్, ఈ రెండింటిని కలిపి ప్లాగతాన్ అంటారు. ఈ మంచి కార్యక్రమము మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, అట్లాగే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, తర్వాత వాకర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఎన్నుకున్నారు. ఇందాక చాలామంది పెద్దలు చెప్పినట్టు అనంతగిరి అంటే తెలంగాణ ఊటీగా పిలువబడుతుంది. అనంతగిరి అంటే ఒక హరితగిరిలాగా ఉన్నటువంటి ఈ దాంట్లోపల పర్యాటకులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నారు.
దీంట్ లోపల తిన్నటువంటి అన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ కానీ అవి ఏమన్నా మిగిలిన పదార్థాలు వేసి కొంచెం కాలుష్యం ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి మనం బయట చూస్తూ ఉన్నాం, మనం ప్లాస్టిక్ను నిషేధిద్దామని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఇది ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇది ఒక పరిశుభ్రంగా ఉండాలనేటటువంటి దాంతో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में सहाफ़ियों को डबल बेडरूम मकानात की हवालगी पर सवाल खड़े करते हुए एक और सहाफ़ी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तफसीलात के मुताबिक जहीराबाद के पस्तापुर इलाके में सहाफ़ियों के लिए 38 डबल बेडरूम मकानात तैयार किए गए, जिसमें से 31 डबल बेडरूम मकानात को हालिया दिनों सहाफ़ियों के हवाले कर दिया गया। ताहम मज़कूरा डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट को गैर मुनसिफाना करार देते हुए एक तेलुगु सहाफ़ी शकील अहमद ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पस्तापुर में सहाफ़ियों के लिए तैयार करदा डबल बेडरूम मकानात गैर हकीकी सहाफ़ियों को अलॉट किए गए, जिसकी जामे और मुनसिफाना तहक़ीक़ात ज़रूरी है। इस माह की 5 तारीख को हाई कोर्ट ने बगौर समाअत के बाद रियासती हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो अंदरून 6 हफ्ते इस मामले की तहक़ीक़ात करके अदालत को रिपोर्ट पेश करें। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के इश्तराक से बोयनपल्ली किडनैपिंग केस की तहक़ीक़ात के दौरान नई पेशरफ्त सामने आई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि इस केस में मज़ीद 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से बोयनपल्ली किडनैपिंग केस में आज और भी मेजर डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, 5 जनवरी 2021 शाम के वक्त बोयनपल्ली में मनोविकास नगर कृष्णा रेसिडेंसी अपार्टमेंट में कुछ लोग एफआईआर के मुताबिक 10 से 15 लोग आए थे, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि और भी लोग थे और उसमें प्रवीण कुमार, नवीन कुमार, सुनील कुमार का किडनैपिंग हुआ। इस केस में पहले पुराने प्रेस मीट में आप लोगों को बताया गया है कि श्रीमती भूमा अखिल प्रिया रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट, एम मल्लिकार्जुन रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट, बोया संपत का इन्वॉल्वमेंट, बाला चेन्नैया एलियस बालू का इन्वॉल्वमेंट। आज नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स मिलकर 15 नए लोगों का अरेस्ट हुआ, जिसमें मादाला सिद्धार्थ, बोजगनी देवप्रसाद, मोगली भानु, रागुलू अंजय्या, पडिरा रविचंद्रा, पच्चिगली राजा एलियस चंटी, बनोद साई, देवरकोंडा कृष्णा वंशी, देवरकोंडा कृष्णा साई, देवरकोंडा नागराजू साई, कंदुला शिव प्रसाद, मीसल सीनू, प्रकाश और शेख दाऊद, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ हमारे पुलिस टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन और ख़ास करके पुलिस कस्टडी के दौरान क्वेश्चनिंग के बाद जो रिकवरी हुआ, उसमें भी बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आए हैं, जैसे रिकवरी ऑफ कार्स, मोबाइल फ़ोन, कॉल डेटा एनालिसिस। ये इन सब इंफॉर्मेशन के साथ हमारे डीसीपी और टास्क फोर्स मिलकर इस केस को आगे लेकर जा रहे हैं। सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ पॉट मार्केट इलाके की एक जेवरात की दुकान में चोरी की वारदात के अंदरून 24 घंटों में ही पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करते हुए चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। बरामद शुदा अशिया में सोना, चांदी और नकदी शामिल है, जिसकी जुमला मालियत 39,14,904 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम की शनाख्त आदिल साकिन बंसीलाल पेट के तौर पर की गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। नॉर्थ जोन में हुआ था, जिसमें कि महाकाली डीआई पुरुषोत्तम ने बहुत अच्छा काम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी महाकाली, जिसमें कि इंटैक्ट स्टोलन ज्वेलरी ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स गोल्ड, 200 ग्राम्स सिल्वर, कैश सब मिलाकर लगभग 39,14,900 रुपीज़ वर्थ आइटम का रिकवरी हुआ, जिसमें कि अक्यूज्ड मोहम्मद आदिल एलियस अरहान सन ऑफ मोहम्मद मकबूल एज 28 ईयर्स, ये टेम्पररी ड्राइवर का काम करते हैं और चाचा नेहरू नगर बंसीलाल पेट सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। तो इन सब अच्छे काम के लिए हमारे तरफ से डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर
एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती और पूरे टीम एसीपी, एसएचओ, डीआई and the entire team of North Zone and Task Force, hearty congratulations to them. Thank you. हालिया दिनों कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोंडापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेरे इलाज शख्स ने मुबैना तौर पर आज अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। इस शख्स की शनाख्त नारायणा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव आने के बाद वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। ताहम बीमारी के सबब मायूसी के शिकार इस शख्स ने ये ही अस्पताल की दूसरी मंजिल पर वाक़ वार्ड की खिड़की से कूद कर ये इंतहाई इक़दाम किया। वाक़े की इत्तला पर मादापुर पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के शहरियों की जेब पर बढ़ा बोझ, पेट्रोल की कीमत पहुंची 90 रुपए के करीब तर। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने किया बड़ा ऐलान। वैक्सीन हासिल करने के बाद अगर किसी पर बुरे असरात पड़ते हैं तो कंपनी अदा करेगी मुआवजा। नामपल्ली दरगाह यूसुफियन में वजू खाने और बैतुल खला का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, डिप्टी मेयर बाबा फसियुद्दीन की जुस्तजू से अमल में आई तामीर, बल्दिया ने जारी किया फंड। पुराने शहर मौला का छिल्ला इलाके में मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्लाह का इफ्तिताह। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी समेत मुसल्लियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। गोलकुंडा पर जाफरानी परचम लहराएगी बीजेपी। एग्जीक्यूटिव मीटिंग से बंडी संजय का खिताब, कहा 2023 में तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत का होगा खात्मा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की कल यौम पैदाइश। जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की पाबंदियां, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की आवाम से ख्वाहिश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।